Hello everyone, in this video we are going to cover extra questions based on laws of exponents from chapter 1 number system class 9th NCERT mathematics. As we are having 7 laws of exponents, let's quickly revise them. The first law is a raised to power m multiplied by a raised to power n. When the base is same and multiplication is there, what about the exponents? We can add their exponents. Second one is when a raised to power m divided by a raised to power n. Again, when base is same and exponents are different, we have to subtract their exponents. The third one is a raised to power m multiplied by b raised to power m. When base is same, when base is different and exponents are same, then you have to multiply the base and write the common exponents out. The fourth one is a raised to power m divided by b raised to power m. It can be written as a upon b whole raised to power m. The fifth one is a raised to power m whole raised to power n. जब एक्सपोनेंट के फिर से ऊपर एक्सपोनेंट्स हो जाते हैं, एक्सपोनेंट्स के भी एक्सपोनेंट्स हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारे एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. फॉर एग्जांपल a raised to power m raised to power n, it can be written as a raised to power m into n. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास होता 2 raised to power 3 whole raised to power minus 5, तो आंसर will be 2 raised to power minus 15. The next one is sixth is a raised to power minus 1. When we are having a raised to power minus 1, we can't solve negative exponents. Whenever the exponent is negative, we have to change it into positive exponents before simplifying it, and to change it in a positive exponent, we need to take reciprocal of its base. So base will be 1 upon a, right? Exponent will become positive. For example, if we are having 3 raised to power minus 4, we can't open it directly. Firstly, we have to change this negative exponent into positive. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? We have to take reciprocal of base. That is 1 upon 3 raised to power 4. Answer will be 1 raised to power 4 is 1 and 3 raised to power 4 is 81, right? The last law of exponent is a raised to power 0 is equal to 1. Any number raised to power 0 is equal to 1 except 0. It can't be written as 0 raised to power 0. It is not defined, right? And for every number other than 0, any number raised to power 0 will gives us 1. Okay, let's do quickly all these questions. पहले आप ये सारे questions खुद करें, फिर उसके बाद आप आंसर्स चेक करिए. पर ये जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है ना, चाहे आप इस साइड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाओ, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाओ, दोनों तरह से वर्क करते हैं, राइट? सेकेंड थिंग इज ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, ये सिर्फ आप देखो सारे लॉज सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर है. कुछ बच्चे ना इन्हीं लॉज को यूज़ करते हैं, जैसे ये वाला लॉ देख लो आप, कुछ बच्चे इसको भी इस तरह से ले लेते हैं, 2 raised to power 3 plus 3 raised to power 3. तो what they are doing, they will do 2 plus 3 whole raised to power 3. ये तो हो ही नहीं सकता. ये कैसे लिख सकते हो आप, है ना? क्योंकि इसके बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं है. अगर हमें यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाने थे, तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन का. मतलब टर्म शुड बी ए सिंगल टर्म, राइट? लेट्स डू ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देन चेक योर आंसर्स. अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, इसको अगर कॉमन नहीं ले सकते तो कैसे सॉल्व करना है? फर्स्टली यू हैव टू ओपन द एक्सपोनेंट ऑफ 2, देन ओपन द एक्सपोनेंट ऑफ 3. 2 2s are 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 3s are 27. Then you have to add them. Answer will be 35. Is it clear? But अगर आप इसको इस तरह से कर दोगे, 2 plus 3 raised to power 3, it gives us 5 raised to power 3 which is equal to 125. ये दोनों सेम तो नहीं आए हैं, है ना? इसका मतलब इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते, right? Both these two things are different. Here you have to apply the identities a plus b whole cube. Let's do first question. In first question we have to find out the value of this. Here we are having a raised to power minus 1 into b raised to power minus 1 into c raised to power minus 1 into a. सबसे पहले तो देखो आप इन सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब हमारे पास टर्म सिर्फ एक ही है. तो हम क्या कर सकते हैं,
और सबकी पावर्स भी सेम है। रूट है, रूट की क्या मतलब होता है, ए रेज टू पावर, स्क्वायर रूट ऑफ ए का क्या मतलब होता है, ए रेज टू पावर 1/2। इसका मतलब दीज ऑल कैन बी रिटन अंडर द सेम रूट बाय यूजिंग द लॉ ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू पावर m। अगर सबकी पावर सेम होती है तो हम बेस को मल्टीप्लाई करके कॉमन एक्सपोनेंट को बाहर लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हेयर वी कैन डू, हम यहाँ पे सबको सेम रूट के अंदर रख सकते हैं क्योंकि सबकी पावर कितनी है 1/2। तो इट कैन बी रिटन एज a raised to power -1b multiply by b raised to power -1c multiply by c raised to power -1a. Hope this one step is clear. The next one is, now you have to change these negative exponents into positive. And how we can do that? A raised to power -1 can be written as 1/a. b will remain as it is. Here b raised to power -1 can be written as 1/b and c will remain as it is. Here c raised to power -1 can be written as 1/c and a will remain as it is. Now if there is any factor which is common among numerator and denominator, we can cancel that factor, right? a cancel with a, c cancel with c, b with b. ये कटिंग हम तभी कर सकते हैं बेटा जब बीच में मल्टीप्लाई के साइन होंगे। प्लस के साइन पे भी कई बार बच्चे कटिंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा होता है 1/a, वो इसे ए को काट देते हैं। वी कांट कैंसल देम लाइक दिस। हम सिर्फ कटिंग कब कर सकते हैं, व्हेन वी आर हैविंग कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है जब मल्टीप्लाई का साइन होता है बीच में, राइट? ऐसे कटिंग नहीं होती है। यू कैन, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इट्स रिजल्ट। इट विल गिव्स अस, सिर्फ क्या बच गया ऊपर, 1, √1 इज इक्वल टू 1. This is answer is, its value is equal to 1. Now let's do the next one. This is 256 raised to power 0.16, 256 raised to power 0.09. Which law of exponent we can use here? If the base is same, multiplication is there, we can add their exponents. So we can write it and like 256 raised to power 0.16 plus 0.09. Now 256 raised to power, we have to add them. डेसिमल्स नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, पहले फर्स्ट नंबर लिखिए। जब आप सेकेंड नंबर लिखेंगे तो सारे डेसिमल्स एक लाइन में आते हैं। डेसिमल शुड बी अंडर द डेसिमल, वंस प्लेस शुड बी अंडर द वंस एंड टेंथ एंड 100th प्लेस शुड बी प्लेस्ड लाइकवाइज, राइट? This is 0.25. What should be the next step? Now remove this decimal. You will get 256 raised to power 25 upon 100. 25, how many is 100? 25 4s are 100. As we can see, 256 is not a prime number. Laws of exponents में आपने एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका बेस जो है वो फैक्टराइज्ड, मतलब वो प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, राइट? बेस शुड बी अ प्राइम नंबर, तभी आपका क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम सही निकलता है। अगर आप इसको, कई बार बच्चे इसको कॉम्पोजिट नंबर में छोड़ देते हैं तो आंसर गलत भी हो जाता है। 256, हाउ वी कैन राइट 256? हु स्क्वायर इज 256? एज वी नो 256 इज स्क्वायर ऑफ 16, तो इट कैन बी रिटन एज 2 raised to power up 256 can be written as 2 raised to power what? 16 स्क्वायर है ना, तो 16 होता है 2 raised to power 4 whole raised to power 2, it will be 2 raised to power 8 whole raised to power 1/4। और जब एक्सपोनेंट्स के भी एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं तो हम एक्सपोनेंट्स को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट गिव्स अस 2 raised to power 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 2s are 8, it is 2 raised to power 2, answer will be 4. Hope it is clear. Now the next question is 81 raised to power x is equal to 9/3 raised to power x. 81 raised to power x is equal to 9/3 raised to power x. जब भी हमारे पास वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट्स में होता है तो हमारे पास एक ही रूल होता है, वी हैव टू मेक देयर बेस सेम। When the base is same on both the sides, we can equate their exponents. तब हम exponents को आपस में equate कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी हमारे पास वेरिएबल एक्सपोनेंट्स में चला जाता है तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमें किसी तरह से इन दोनों का बेस क्या बनाना है, सेम बनाना है।
तो 81 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर x. 9 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर x. दिस इज 3 रेज टू पावर एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 4x. यहाँ पे बेस सेम है, जब बेस सेम होता है बीच में डिवीजन का साइन होता है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट 3 raised to power 2 minus x. Now you can see we are having same base as base is same, therefore equate exponents, right? अब हमारा बेस सेम आ गया तो हम एक्सपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं. एंड हाउ वी कैन डू दैट, 4x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स. यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना था 4x और यहाँ पे कितना था 2 माइनस एक्स और बेस दोनों का सेम हो गया 3. तो हमने एक्सपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, आपको देखिए ना, दो चीज़ें तभी इक्वल हो सकती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई जब उनका बेस सेम है तो उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों इक्वल बनेंगी आपस में. तो हाउ वी कैन राइट इट एज, इट कैन बी रिटन एज, एक्स को इधर ट्रांसपोज कर दे बिकॉज बोथ दीज टू आर लाइक टर्म्स. 5x इज इक्वल टू 2, x is equal to 2 by 5. This will be the answer. Next question is, a is equal to 3 and b is equal to 11. We have to find out the value of b raised to power a. Means b कितना है 11 और a कितना है 3. We have to multiply 11 into 11 into 11. 11 11 is 121. Multiply by 11. It is 1331 is the correct answer. Now let's do some more questions. Okay, let's do these questions. बेटा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ना बच्चे छोटी छोटी सी गलती करते हैं, उन थोड़ी से ना इन चीज़ों को ध्यान से समझना है ताकि आपको क्लास 10th में प्रॉब्लम ना आए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 8. दिस इज क्यूब रूट, यहाँ पे इंडेक्स में कौन सा नंबर है 3, तो इट मीन्स दिस इज क्यूब रूट ऑफ 8 होल रेज टू पावर -1/2. अब आप इसको लिख सकते हो 8 रेज टू पावर 1/3. क्यूब रूट का क्या मतलब होता है, पावर 1/3. स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, पावर 1/2. फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4. एक्सपोनेंट विल बी 1/3. द नेक्स्ट वन इज -1/2. राइट. 8 is not a prime number. First of all, write it as in the form of exponent, right? How we can write it? It can be written as 2 raised to power 3 whole raised to power 1/3 whole raised to power -1/2. जब भी हमारे पास एक ही नंबर के एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं तो हम इन सबको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय -1/2. ये 3 डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में, वी कैन कैंसिल दैम. बट वी लेफ्ट विथ 2 रेज टू पावर -1/2. नेगेटिव एक्सपोनेंट्स तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ बेस. दिस इज 1/2 होल रेज टू पावर 1/2. और पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट. It can be written as square root of 1/2. Square root of 1 is 1 and square root of 2 is √2. This will be the answer. But आप इस आंसर को ऐसे नहीं छोड़ेंगे. We need to rationalize it whenever the irrational number is there in the denominator. So how we can rationalize it? √2 divided by √2. This is 2 √2 multiplied by 1 is √2 and 2 into 2. This is the correct answer. Hope it is clear. Let's do the next one. जब भी हमारे पास इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आता है तो हमें इसको रैशनलाइज करना है, राइट. लेट्स डू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 625 रेज टू पावर -1/2 होल रेज टू पावर -1/4 होल रेज टू पावर 2. अब यहाँ पे हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लग सकता है. कौन सा लॉ लग सकता है, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n. एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, राइट. अब 625 इज नॉट अ प्राइम नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट 625 एज 5 रेज टू पावर 4. देन दिस इज -1/2 होल रेज टू पावर -1/4 होल रेज टू पावर
2। अब ये जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 5 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए जो नंबर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास कैंसिल हो रहे हैं आप उनको कैंसिल कर सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 5 रेज टू पावर -1 -1 इंटू -1 इज 1, आंसर विल बी 5, राइट। होप इट इज क्लियर। लेट्स डू द लास्ट वन, नेक्स्ट वन। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, राइट। अब कुछ बच्चों को लगता है कि यहाँ पे हम या तो 1/2 को अंदर ले आए और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लगते हैं, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो आप ये 1/2 सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, राइट, अदरवाइज वी कांट। जहाँ फिर हम 3 क्या कॉमन लेके बाहर जा सकते हैं, वो भी नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते, अगेन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे ही लगते हैं, यहाँ पे आप पावर्स को बाहर नहीं लेके जा सकते, राइट। हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो फिर इसको करेंगे कैसे, वी हैव टू ओपन देयर क्यूब्स, इंडिविजुअल क्यूब्स वी हैव टू ओपन। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब is 8, 3 cube is 27, whole raised to power 1/2. Now you have to add them all. After adding them, you have to take its square root. 1/2 का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, दिस इज 28, दिस इज 36, 36 raised to power 1/2. It gives us 6. Answer will be 6. Hope it is clear. Okay, let's do this one question. Here we are having cube root of 27. Here we are having 7 multiplied by cube root of 216. Here we are having 10 multiplied by 6th root of 64. Then square root of 121. Okay, let's do it. क्यूब रूट का क्या मतलब होता है, हमें अंदर ट्रिपलेट्स बनाने होते हैं सेम नंबर के। तो 27 cube root, it is 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 7. This is 216. 216 is cube of 6. This is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 plus 10. This is 6th root of 64. 2 into 2 into 2 to 2 into 2 into 2. 64 is 2 raised to power 6 plus 121 is 11 multiplied by 11. अब आप इन सबके इंडेक्स देखिए, यहाँ पे 3 है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है अंदर ट्रिपलेट बनेगा, और अगर जिस नंबर का भी ट्रिपलेट बन जाएगा उसमें से एक बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट बन रहा है तो क्यूब रूट विल बी सॉल्व। अब कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, इसको 3 तो लिख देंगे और ऊपर पावर फिर से लिख देंगे, बेटा ये खत्म हो जाती है। इसका एक्चुअल मीनिंग तो यही है ना, 3 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3। तो अभी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या पढ़ा है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिर्फ 3 बचेगा, तो इसको क्यूब रूट खत्म हो जाता है यहाँ पे, राइट, -7। अब यहाँ पे 2 का भी ट्रिपलेट बन गया और 3 का भी ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पे 3 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा। जो नंबर पहले से ही बाहर आई है उनके साथ आके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, प्लस 10, दिस इज 6th रूट ऑफ 64। मतलब यहाँ पे एक 2 का 2 multiplied by 2 मतलब हाउ मेनी टाइम्स इट शुड बी देयर, 6 टाइम्स इट शुड बी देयर, तभी हमारे पास 6th रूट सॉल्व हो पाएगा ना। तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, तो मतलब वी कैन राइट इट एज, इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर 1/6। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये कैंसिल हो जाता है, कितना बच जाता है, 2, 10 multiplied by 2 प्लस 11, इट कैन बी रिटन एज 11 स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2, ये कट गया, हमारे पास 11 बच गया। मतलब हमारे पास जब स्क्वायर रूट है तो अंदर पेयर बनना चाहिए, तो ये हमारे पास बच गए नंबर्स। अब हमें पहले बॉड मास लगाना है, बॉड मास के अकॉर्डिंग वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव टू ऐड देम। 3 minus 7 6 42 प्लस 10 3 10 2 20 plus 11. Add them all, you will get -42 plus +34। बट चेक कर लो।
Yes, it is correct. Now solve them. Minus 42 plus 34. Answer will be minus 8. This is the answer. Both the numbers are having opposite signs. When terms are having opposite signs, we have to subtract them with the sign of the larger number. Answer will be minus 8. Okay, let's do the next one. बेटा कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ना वीडियो को पॉज ज़रूर करें और इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व करें. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग then you can take the help of a video, and to check your answer also you can. Here we are having 64 raised to power minus 1 by 3, 64 raised to power 1 by 3 minus 64 raised to power 2 by 3. क्या हम यहाँ से 1 by 3 को कॉमन लेके जा सकते हैं? नो, नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमारे पास बीच में माइनस का साइन है, राइट. तो फिर हमें अब सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट देयर बेस एज प्राइम नंबर. 64 कैन बी रिटन एज, अभी हमने पढ़ा था 2 raised to power 6 whole raised to power minus 1 by 3. Here 64 can be written as 2 raised to power 6 whole raised to power 1 by 3 minus 2 raised to power 6 whole raised to power 2 by 3. अब 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 2s are 6. Hope it is clear till here. यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट्स में क्या बच गया, 2 multiplied by minus 1, it is 2 raised to power minus 1 bracket 2 raised to power 2 multiplied by 1 is 2, this is 2 raised to power 2 minus 2 raised to power 2 into 2, this is 2 raised to power 4. What should be the next step? अब हमें इन एक्सपोनेंट्स को ओपन करेंगे पहले. This is 2 raised to power minus 2. It can be written as 2 raised to power 2 is 4. 2 raised to power 4 is 16. Right? Now you can subtract them. 2 raised to power minus 2. What you will get after subtracting them? It is minus 12. Right? अब आप देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट नेगेटिव है. आप इसको पहले मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, पहले आपको इसका एक्सपोनेंट ओपन करना पड़ेगा. बेटा बॉड मास ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब होता है पहले उसकी जो भी पावर है वो खुलेगी, पहले उसके एक्सपोनेंट्स ओपन होंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, राइट. तो पहले आप इसके एक्सपोनेंट को ओपन करो. एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए नेगेटिव है तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. 2 raised to power 2 हो जाएगा. तो दिस इज minus 12. 2 raised to power 2 is 1 by 4 मल्टीप्लाई बाय minus 12. ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं. यू कैन कैंसल देम. 4 3s are 12. minus 3 will be the answer. Hope it is clear. Okay, let's do this next one question. We are having 3 raised to power x minus 1, 5 raised to power 2y minus 3 and 2 to 5. अब ये क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है. इसमें हमारे पास दो अलग अलग बेस हैं और यहाँ पे इनके एक्सपोनेंट्स दे रखे हैं और यहाँ पे 2 to 5 है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप 2 to 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो. मैंने आपको पहले भी बताया था, whenever we are having exponents in the form of variables, right? To find out the values of variables, हम एक्सपोनेंट्स को तभी इक्वेट कर सकते हैं जब बेस सेम होगा. तो मतलब हमें दोनों साइड पे बेस सेम बनाना पड़ेगा. अब बेस 3 बनाना है या 5 बनाना है या दोनों बनाने हैं. बेटा देखो कॉमन बेस तो यहाँ पे बन नहीं सकता. क्या आप इन दोनों पे कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा पा रहे हो? यहाँ पे 3 raised to power x minus 1 है, 5 raised to power 2y minus 1 है. ना तो इनके बेस सेम है ना ही इनके एक्सपोनेंट सेम है. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन एक्सपोनेंट तो नहीं लिख सकते. यहाँ पे कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लग रहा है. इट मीन्स इट विल रिमेन एज इट इज. अब हमें जो भी वर्किंग स्टार्ट करनी है हमें इस साइड से स्टार्ट करनी है. 2 to 5. 2 to 5 क्या किसका स्क्वायर होता है? 2 to 5 is square of 15. Yes. तो you can write it as 3 raised to power x minus 1 multiply by 5 raised to power 2y minus 3. It can be written as 2 to 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं. 3 square and 5 square. अब करके भी देख लो. दिस इज यू कैन डू इट विथ 3 7s are 1 left, 3 5s are 3 2s are 6, 1 left, 3 5s are 5 5s are 5 1s are. अब इसके बाद क्वेश्चन को क्या करेंगे? अब इनके बेस इधर तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा.
अब हम इक्वेट कैसे करेंगे, जो 3 वाला बेस है ना वो इसको 3 वाले के साथ और जो 5 वाला है उसको 5 वाले के साथ इक्वेट कर देंगे. वी कैन राइट इट एज, therefore we can write it as 3 raised to power x minus 1 is equal to 3 raised to power 2 and 5 raised to power 2x minus 2y, this is 2y minus 3 is equal to 5 raised to power 2. As their base is same, so we can equate एक्सपोनेंट्स. राइट, अब हम इनके एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर देते हैं. यहाँ पे बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2. यहाँ से x की वैल्यू ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1, x विल बी 3. ऑलवेज कीप योर आंसर इन बॉक्स. दिस इज अगेन हेयर बेस इज सेम. 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 2. 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 5. तो y will be 5/2. राइट. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग बेस आ रहे थे और यहाँ पे भी हमें वही सेम बेस बनाने थे और फिर सेम बेस वाली टर्म फैक्टर को सेम बेस वाले फैक्टर के साथ इक्वेट करना था. राइट. लेट्स डू द नेक्स्ट. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. 81/16 रेज़्ड टू पावर माइनस 3/4 multiply by 25/9 raised to power minus 3/2 divided by 5/2 raised to power minus 3. अब बेस सबके अलग हैं. सबसे पहले तो हमें बेस सेम बनाने पड़ेंगे. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऐसे कैसे लग सकते हैं, एक्सपोनेंट्स भी डिफरेंट है. तो आप देखिए कि जो इनके बेस हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं है. इसका बेस तो प्राइम नंबर है, दिस इज ओके. इसका बेस 81 इज अ कॉम्पोजिट. 16, 25, 9, सबसे पहले तो इनको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखो. 81 कैन बी रिटन एज 3 raised to power 4 and 16 can be written as 2 raised to power 4 whole raised to power minus 3/4. Multiply by 25 can be written as 5 raised to power 2 and 9 can be written as 3 raised to power 2 whole raised to power minus 3/2 divided by 5/2. अच्छा, ये 5/2 का एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ बेस 2/5 होल रेज टू पावर 3. होप इट इज क्लियर. अब यहाँ पे देखो दोनों का बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है. आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता है, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर m. जब बेस डिफरेंट होता है पावर सेम होती है और वी कैन राइट इट एज लाइक दिस. हम बेस को डिवाइड करके पावर को कॉमन लिख सकते हैं. तो सेम इज है, वी कैन राइट इट एज 3/2 होल रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर minus 3/4 multiply by, this is 5/3. It can be written as 5/3. Again base you can write like this and exponent आप बाहर लिख सकते हैं होल रेज टू पावर minus 3/2. This is divided by 2/5 raised to power 3. What should be our next step? एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 3/2 रेज टू पावर -3. अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो आप बेस का क्या कर दो, रेसिप्रोकल. तो व्हाट यू कैन राइट है, यू कैन राइट इट लाइक 2/3 रेज टू पावर 3. राइट. 5/3 raised to power -3. Again you can write it as 3/5. रेसिप्रोकल ऑफ बेस करोगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा. 3/5 raised to power 3. डिवीजन है 2/5 raised to power 3. What should be your next step? आप इनके एक्सपोनेंट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. राइट. सेम लॉ है बेटा, आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो. मतलब अगर कॉमन एक्सपोनेंट है उसको बाहर भी लिख सकते हो, अगर सेम एक्सपोनेंट है आप उसको कॉमन भी लिख सकते हो और अगर कॉमन एक्सपोनेंट्स है आप इनको अंदर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो. राइट. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको, इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 3 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3.
यहाँ पे भी आप 2 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 3 लिख सकते हो, बट बीच में साइन कौन सा है, डिवीजन का। तो डिवीजन सॉल्व कैसे करते हैं, वी हैव टू चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड इट कैन बी रिटन एज 5 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3, राइट। डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट फ्रैक्शन। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो ये नेक्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज नहीं लिखी जाती है, इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। आपने पिछली क्लासेस में भी सीखा होगा, वी वांट टू डिवाइड 3/4 डिवाइडेड बाय 13/6। तो आप क्या करते थे, इट विल रिमेन, फर्स्ट फ्रैक्शन विल रिमेन एज इट इज, डिवीजन चेंज्ड इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट 6/13। सेम ही चीज़ करी है मैंने यहाँ पे, डिवीजन को किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पे 2/5 था तो कितना हो गया 5/2, और एक्सपोनेंट्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कॉमन फैक्टर अमंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वी कैन कैंसल आउट, वी लेफ्ट विद ओनली 1 नॉट 0। ओके, डू 1-2 मोर क्वेश्चंस। अच्छा, एक भी क्वेश्चन देखें, x = 7 + 4√3 है और आपको 1/x निकालना है, और उसके बाद आपको x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, 1/x का मतलब उनको लगता है 1/x विल बी 1/x की ये वाली वैल्यू लिख दी 7 + 4√3, और दिस इज द करेक्ट आंसर। नो बेटा, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगर आपके पास इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में बनता है तो क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि आपको इसको रैशनलाइज्ड फॉर्म में लिखना है, राइट। आपको डिनोमिनेटर हमेशा रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो आपको इसको रैशनलाइज करना है, राइट। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद इट्स कॉन्जुगेट, दैट इज 7 - 4√3, 7 - 4√3। 1 multiplied by any number gives us the same number, divided by 7 + 4√3, 7 - 4√3, a plus b, a minus b. This is a² minus b², right? 7 - 4√3, 7 7s are 49। अब ये जो स्क्वायर है, अंदर मल्टीप्लाई का साइन है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 4 को भी और √3 को भी। ये नहीं कि अपने √3 के साथ स्क्वायर को काट देना, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं a raised to power a into b raised to power m। तो आप इसको कैसे लिखोगे, a raised to power m, b raised to power m, ऐसे ही होता है। इस चीज़ से ये चीज़ बनती है तो इससे भी तो यही बनेगी ना। आपने सीखा था a raised to power m मल्टीप्लाई बाय b raised to power m है, तो आप बेस को मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट को कॉमन लिख सकते हो। तो अगर एक्सपोनेंट कॉमन है तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर, राइट, मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो यहाँ पे ये 4 4 16 और √3 का स्क्वायर इज 3। अब पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 7 - 4√3 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 16 3s are 48। डिनोमिनेटर में कितना बच गया हमारे पास, 1। दिस इज 7 - 4√3 डिवाइडेड बाय 1। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 - 4√3। अब हमारे पास x की भी वैल्यू है, 1/x की भी वैल्यू है, 7 - 4√3। अब हमें दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लस। तो कर लेते हैं, प्लस करिए। x की जगह पे आ जाएगा 7 + 4√3 और 1/x की जगह पे कितना आ जाएगा, 7 - 4√3। 7 - 4√3 और 7 - 4√3 कैंसिल हो जाएंगे। 7 + 7 is 14 will be the answer. Now these 4 questions are homework. जल्दी से सॉल्व करें और कमेंट में आंसर करें क्या आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज a + √2 + 1। आपको a - 1/a की वैल्यू निकालनी है, अभी जैसे हमने पीछे किया है। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है, राइट। पहले a निकाल, a भी है 1/a हमने निकालना है। अभी मैंने बताया ना 1/a इज 1/√2 + 1, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा बीच में माइनस का साइन है, इसलिए ध्यान से करना है। माइनस के साइन का मतलब होता है अंदर जितनी भी टर्म्स आएंगी सबके साइंस चेंज होंगे। उसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करिए। लेट्स सी क्या आंसर आता है। दिस वन इज x² एंड दिस इज क्यूब रूट ऑफ x, दिस इज 4th रूट ऑफ x। इसका क्या मतलब है, दिस इज x² क्यूब रूट ऑफ x मीन्स दिस इज रेज टू पावर 1/3, 4th रूट ऑफ x मीन रेज टू पावर 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करिए और देखिए क्या आंसर आता है आपके पास। दिस इज क्यूब रूट ऑफ 4th रूट ऑफ
ऑल दीज नंबर्स। अब यहाँ पे ये सब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले तो आप सबको चेक करिए कि इनका फोर्थ रूट निकालना है आपने, क्या आंसर आएगा। राइट, द नेक्स्ट वन इज 2 raised to power x, 4 raised to power x is equal to 8 raised to power 1/3, 32 raised to power 1/5। अब ये सारे क्वेश्चंस आप खुद करें और आंसर आप कमेंट में लिखिए। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बाय।